Let's get started with the session. First of all, Christ University admissions 2026 from eligibility to admission process, timeline, FAQs, आज जैसे कि हमने कह दिया कि वो हम सभी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. Before moving ahead, I'll just let you know कि आपके पास क्या क्या options हो जाते हैं. Why Christ University is such a good alternative when you're preparing for entrance examinations, when you're preparing for your future. है ना, आप अपने फ्यूचर हायर स्टडीज के लिए जब लाइक डिसीजंस लेते हो या बाकी के ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर करते हो, तो व्हाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी कम्स इन अ लाइक इम्पोर्टेंट इन दैट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट या इन दैट लैंडस्केप. वो इसलिए क्योंकि एज यू कैन सी the like variety of programs that is being offered at Christ University is like a plethora of opportunities, right? आपके पास एक रेगुलर जो हमारा बीबीए का प्रोग्राम होता है, बीबीए ऑनर्स एंड बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च या कह लो आप, वो तो अवेलेबल है ही है. साथ ही यहाँ पे कुछ कोर्स स्पेशलाइजेशंस या कुछ आप डिफरेंट स्ट्रीम की स्पेशलाइजेशंस भी अवेलेबल हैं एट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अप्रोक्सीमेट आपके 6 कैंपसेस हैं. बैंगलोर में ही इसके 4 कैंपसेस हैं. देन बियॉन्ड बैंगलोर आपके पुणे में भी कैंपस है, दिल्ली में भी कैंपस है. एंड अक्रॉस ऑल दीज कैंपसेस दीज प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑफर्ड. सो whichever program aligns the best with your interest, आप उसमें जाके अपना like उसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं ना. यहाँ पे हम जो बात करें, since it's all like specific to your management entrances, however beyond management programs as well, Christ University has a lot to offer, be it a BBA program, be it a BBA LLB program, be it BA programs, BCom programs. बहुत सारे programs हैं जो आप Christ University में pursue कर सकते हो. It all depends on कि आपका interest area कहाँ like कर रहा है, what aligns the best with your interest, and उसके according आप अपने programs को select कर सकते हो या course को pursue कर सकते हो. एज यू कैन सी, हमने जैसे बात करी बीबीए ऑनर्स से है हमारे पास. देन बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, बीबीए इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, बीबीए इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिटिक्स, something which can more relate to the trends that is being that you can witness right now, analytics वगैरह, डिसीजन साइंस, इसके लिए भी एक प्रोग्राम डेडिकेटेड प्रोग्राम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में. बीबीए इन फिनटेक, फिनटेक इज आल्सो गेनिंग अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन और ये कह लो बहुत लॉट ऑफ रेलेवेंस एज वेल इन टुडेज वर्ल्ड. सो बीबीए इन फिनटेक, टूरिज्म, आपने सबने देखा होगा हाउ like on what scale we are promoting tourism. Even the government is taking a lot of initiative to promote the tourism, and not just Indian government, a lot of foreign countries are also promoting their tourism through a lot of initiatives, right? So in order to understand that tourism industry as well, there is a dedicated program. Fine. Now like you can get started at the undergraduate level as itself कि आप tourism के बारे में पढ़ सको. You can take a course that is that makes you specialize in the field of tourism. So a lot of opportunities, a lot of options are available at Christ University. Select or go for whichever aligns the best with your interest. Now अगर हम बात करें यहाँ पे eligibility criteria की, for most of these programs आपकी eligibility criteria almost similar है. Campus to campus it might differ, like for Pune it might differ, for Bangalore it might differ, but generally अगर majority of the programs अगर हम देखें ना, तो उनकी eligibility criteria generally यही रहती है कि either like you must have passed your class 12, you can be of any board, you can apply to these programs, whether you like आपका एक बस Indian recognized board होना चाहिए, whether it's Karnataka PUC, ICSC, CBSC, जो भी आपका state board है, कोई भी board हो, आपका इंडियन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, you can apply and you just have to pass your class 12. no minimum marks requirement as such. उसके भी और जो रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो. So there are no restriction as such, not in the terms of numbers or minimum percentage that is required, not in the terms of any stream that is required. However, यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट कर देना चाहूंगी कि जो बीबीए इन डिसीजन साइंस प्रोग्राम है, that requires mathematics. All the other BBA programs they do not require any such subject requirement, but जो BBA इन डिसीजन साइंस है, वहां पे आपकी मैथमेटिक्स भी रिक्वायर्ड होती है, एंड वहां पे आपका 60% एज अ मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए. दैट इज अ सॉर्ट ऑफ लाइक आप एक अलग से हटके कह दो रिक्वायरमेंट है जो आपकी BBA डिसीजन साइंस के लिए ली जाती है, राइट? नाउ moving ahead, we have discussed the programs that are being offered. We have discussed the eligibility, are you eligible or not. जैसे कि हमने देखा बहुत ही simplified eligibility criteria हैं, so ऐसा कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. However, I would suggest कि अगर आप किसी specific campus को लेके interested हो, go look up for that campus specific criteria. That might differ. However, generally जो आपकी
क्राइटेरिया रहती है वो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स के लिए ये रहेंगे कि आप पास होने चाहिए क्लास 12 में एंड यू कैन बी ऑफ एनी स्ट्रीम, यू कैन अप्लाई, देयर आर नो अदर क्राइटेरियाज, फाइन. बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि आप अपने कैंपस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना वहां पे जाकर थोड़ा सा रिसर्च कर लेना, फाइन. नाउ हमने बात कर ली प्रोग्राम्स की. हाउ वी डू वी गेट इनटू दोस प्रोग्राम? डेफिनेटली दैट इज द प्राइमरी गेटवे वुड बी योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अब यहाँ पे 2 डेट्स क्यों लिखी हुई है ना? हमने तो अभी तक सुना है कि 7 दिसंबर को ही हो रहा है, यहाँ पे 2 डेट्स क्यों लिखी हुई है? सो आई वुड लाइक ब्रिंग इट टू योर नोटिस कि definitely यहाँ पे I'll kind of provide an idea to everyone out there जो भी हमारी ऑडियंस है, not just limited to हमारी बीबीए की. हम थोड़ा सा बाकी ऑडियंस को भी हम थोड़ा सा बता देंगे कि क्या एग्जामिनेशन टाइमलाइन रह सकती है क्या नहीं, है ना. अगर हम बीबीए के प्रोग्राम्स की बात करें यहाँ पे, तो बीबीए प्रोग्राम्स की जो एग्जामिनेशन डेट है वो 7th of December है. Everyone knows that, क्योंकि वो अगेन एक चर्चा का विषय बन चुका है, because it's clashing with the CLAT, it's clashing with your what I can say, it's clashing with your Ashoka University का dates as well, and definitely बाकी के जो further आपके admission process की timeline होगी वो भी कहीं ना कहीं किसी और examination से clash कर रहा है. However, there is the news कि 8th of आपके जो December है उसमें आपका BA LLB और BBA LLB के जो प्रोग्राम्स होंगे उसका एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. So all people who are looking out for these 2 programs, BLLB and BBLLB, उनके लिए entrance examination की date would be 8th of December and not 7th of December. Fine. Now, इसके अलावा there is a very interesting fact जो हम यहाँ पे डिकोड करना चाहेंगे. रिपोर्टिंग टाइम 6:30 PM दिया हुआ है एंड टेस्ट का टाइम 7 to 8:30 PM दिया हुआ है. एंड इट्स ऑल्सो मेंशन ऑन देयर वेबसाइट कि एक मॉक को सिमुलेट करने की एक टेस्ट लिंक भी प्रोवाइड की जाएगी. तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, अभी तक हमने देखा था सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते थे, बट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मॉक लिंक दी जा रही है, इससे आप अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो. आई विल शो यू द एग्जैक्ट थिंग दैट वाज मेंशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ, है ना. पहला तो दिया है कि 7 दिसंबर को आपका संडे जो है उस दिन आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर BA LLB. जैसा कि हमने देखा BA LLB और BBA LLB के लिए आपका जो एग्जामिनेशन है वो 8th of December को है. फाइन. नाउ फॉर द 7th December जो हमारे BBA के प्रोग्राम से उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिस दिन हो रहा है, रिपोर्टिंग टाइम आपको 6:30 दे रखी है, टेस्ट टाइम आपका 7 to 8:30 है. जैसा कि हम जानते भी हैं कि ये जो एग्जामिनेशन है वो 90 मिनट्स का होता है, तो दैट इज व्हाई दिस इज द टाइमलाइन 7 to 8:30. नाउ 8 दिसंबर की भी अपनी रिपोर्टिंग टाइम है, सब कुछ है. Take a look at this particular information जहां पे लिखा है कि mock test link to check the system compatibility. वो आपके साथ एक मॉक लिंक शेयर की जाएगी जिसको आप अपने सिस्टम में ओपन करके आप अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. If you are sitting in the actual examination while you're sitting to give the actual entrance test, तब उस समय आपको कोई भी हर्डल देखने को ना मिले, कोई दिक्कत ना है, इसलिए आपका सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको चेक करने के लिए आपके साथ एक लिंक शेयर की जाएगी. सो डेफिनेटली द थिंग इज और द फैक्ट और द थिंग दैट वी कैन डिसिफर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज कि ये ऑनलाइन होने वाला है एग्जामिनेशन. फाइन. नाउ द लिंक विल बी शेयर्ड विद यू ऑन 5th of December at 10 AM till 7th of December 3 PM. तो इसके बीच में आपके मेल पे जो भी आप जिस भी मेल आईडी से आपने रजिस्टर कर रखा होगा उस मेल आईडी पे आपको एक एडवांस में लिंक शेयर कर दी जाएगी जिस लिंक के थ्रू आप अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी को चेक कर सकते हो. सो एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करने के बाद एकदम रिलैक्स मत हो जाना, ठीक है. अपने मेल्स को चेक करते रहना कंटिन्यूअसली एंड सी कि आपको जब लिंक आ रही हो तो आप उसको प्रॉपर अपने ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हो जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग इज फाइन, प्रॉपरली वर्क कर रहा हो आपका सिस्टम. ऐसे एनवायरनमेंट सेटिंग में बैठ के अपने सिस्टम को चेक कर लेना, ठीक है. एंड डू दैट एट द टाइम ऑफ योर स्लॉट एज वेल. डेफिनेटली बाकी टाइम पीरियड में भी आप चेक कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि जो आपका टाइम स्लॉट है एग्जामिनेशन का उस टाइम स्लॉट में आप अपने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी को चेक कर लो. चेक एवरीथिंग, इंश्योर एवरीथिंग सो दैट आप एग्जाम के टाइम में कोई दिक्कत ना देख पा रहे हो एंड सो दैट आपका एग्जाम भी स्मूथली जा सके. बिकॉज सिंगल और इवन अ ट्रिवियल जो आपका कह लो कुछ भी अगर दिक्कत आती है ना वहां पे तो आपका पूरा फ्लो बिगड़ता है एंड योर अटेम्प्ट और योर एंट्रेंस एग्जाम का अटेम्प्ट जो है ना वो बहुत सीवियरली इफेक्ट हो जाता है. योर माइंडसेट गेट्स अफेक्टेड, योर फ्लो गेट्स अफेक्टेड एंड आई डेफिनेटली नो कि आप में से कोई भी इस चीज को नहीं चाहेगा कि ये चीज हो, है ना. फाइन. नाउ दिस इज समथिंग
जो हमारी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेके एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्पेसिफिक डिटेल्स थी